Okay, good morning, students. Just 1 minute. I'm starting my laptop and I'm connecting from laptop. Just a moment. There is one issue in my laptop, so it is taking some delay. Just one or two more minutes. Okay, so very good morning to all. And is my screen is visible? Am I audible to you all? Okay, so what we have discussed in our previous lecture, that we have discussed about weight state generator. That is a remaining topic from our chapter number 17. Then we have started with the new chapter, that is a serial communication. What we need to do for serial communication, what are the standards for serial communications, that all we have discussed about the serial communication. We have started discussing about the serial communication. So to perform serial communication, we are having two options, or you can say that we can implement serial communication in two ways. First one, that is a software approach, and the second one, that is a hardware approach. Software approach means what? We will just write a program. We will not introduce any extra hardware, any extra peripheral chip. कोई chip हम introduce नहीं करेंगे. We will use inbuilt for facility which is available for serial communication in 8085. So that is serial SID and SOD pin, serial input data and serial output data. Using this, we will write program. उसका use करेंगे, program write करेंगे, and using that we will send and receive data. And another way is we will use one programmable peripheral device, that is a hardware approach. So that hardware will maintain that communication. Communication कौन maintain करेगा? वो hardware maintain करेगा. That peripheral chip will maintain it. So we will, in both, whether it is a whether it is a hardware approach or software approach, in both the cases, this needs to be done. दोनों केस में आपको क्या करना होगा? And right now we are discussing about asynchronous data transfer. हम अभी कौन सा data transfer के लिए बात कर रहे हैं? We are discussing about asynchronous data transfer. So asynchronous data transfer, serial data transfer, in which we need to follow the steps from sender side and at the receiver end. So asynchronous data transfer hai, so we need to send the start bit and stop bit also. So first what we will do at the sender end, sender के side पे हम क्या करेंगे? We will first inform receiver that is the beginning of your data transfer. So that is by start bit send करेंगे पहले. And then we will send our data, and then at the end of transmission, once the character has been sent, we'll send the end of transmission, that is a stop bits, and then also we will send the parity bit also. So stop bit से पहले हम parity bits भी send करेंगे.
I will explain you with example, so don't worry about it. Right now, just focus on what are the steps that require. So these are the steps. Then we need to convert our data from our parallel word to the serial word, because data which is there in accumulator में जो data होगा, that is, let's say that D0 to D7, so total 8 bit data are there. So we cannot transfer 8 bit at a time. हम यहाँ पे 8 bit at a time transfer नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बिट को ट्रांसफर करेंगे. पहले D0 को ट्रांसफर किया, then we will rotate accumulator, so D1 will become into D0, and then we will send it from D0 again. So like that we will send one bit at a time only. So हम एक ही bit को send करेंगे. So that is, we need to convert our parallel word into the serial bits, and then transmit one bit at a time with appropriate time delay using one data line of a output port. जो आपका output port होगा उसमें से सिर्फ हम एक ही line use करेंगे. And at the receiver end, what we need to do, receiver end पे क्या होगा, इसका reverse. Receiver should recognize the starting of the communication, then it should receive the bit serially, and then convert that serial bits into parallel, and also it needs to check that whether there is any error in the transmission or not. So this is, you can say that this is some kind of arrangement for our software control asynchronous serial communication. This is our processor 8085, and this is our some output port which we will use as a serial port. यहाँ पे जो आउटपुट पोर्ट है उसका जो एक बिट है वो अब हम यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज करेंगे. जो भी आपका आउटपुट पोर्ट होगा, अभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज जस्ट वन एनालॉजी, हम कैसे ट्रांसमिट या रिसीव करेंगे. पूरा प्रोग्राम में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फ्लो चार्ट, कि पूरा फ्लो कैसे होता है. देन वी विल मॉडिफाई दिस फ्लो चार्ट बाय वन और टू instruction, and then we will write our complete program. So in this flow chart, so this is above diagram is for sender, and below diagram is for receiver. ये जो diagram है वो receiver के लिए है. Okay, so there should be some interfacing mechanism जिससे आप chip selection active कर सको. So ऐसा कुछ mechanism होना चाहिए. And whenever we need to, so this is a sender, so sender कौन सा signal generate करेगा, sender needs to generate read signal. sender को read signal generate करना होगा, and sender को write signal generate करना होगा, and this is a receiver, so receiver needs to generate read signal, क्योंकि ये पोर्ट में जो डेटा आएगा उसको रीड करना है, and यहाँ पे ये पोर्ट में डेटा राइट करना है. Now data will be written one by one bit, एक एक बिट डेटा यहाँ पे राइट होगा. So at the transmitter end, what we will do first, we will set a counter for how many character we want to send. So आपका जो character है, आप कौन सा कोड यूज कर रहे हो. If you are using 8 bit data, 7 bit data, 6 bit data, आपका जो data है वो कितने bit का है. So that is, according to that we need to set the counter. So we will set this counter, how many bits we want to send, कितने bits हमको send करने हैं. We need to send our data bits is 8 bit. बट जब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो ये स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट भी हम काउंटर में कंसीडर कर लेंगे. अभी के लिए फ्लो चार्ट के लिए आप सिर्फ ऐसा ही अंडरस्टैंड करो कि काउंटर को आप किससे इनिशियलाइज करोगे, एज मेनी नंबर ऑफ डेटा बिट्स. बट व्हेनेवर वी विल राइट द प्रोग्राम, so at that time we will consider that start bit and stop bits are also part of your counter वो भी हम काउंट करेंगे. So right now that set up a counter for as many number of bits are there. So यहाँ पे 8 bit है. So पहले हम क्या कर देंगे, स्टार्ट बिट को सेंड करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सेंड द स्टार्ट बिट. सो पहले यहाँ पे स्टार्ट बिट आएगा. सो स्टार्ट बिट वी विल सेंड फर्स्ट. वी विल सेंड द स्टार्ट बिट. यहाँ पे ये लाइन पे हमने पहले क्या सेंड किया, स्टार्ट बिट इज सेंड ओवर हियर. सो स्टार्ट बिट मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली इट इज योर जीरो. सो पहले हमने यहाँ पे जीरो सेट किया. So after sending the start bit, we will wait for 1 bit amount of time. So ये क्यों, एज पर आवर बोर्ड रेट, आपका जो बोर्ड रेट होगा उसके हिसाब से आपको 1 बिट टाइम वेट करना होगा. So in this example, we will continue with our previous example that 1200 is our baud rate. So according to that, what is a bit, आपको bit time क्या होना चाहिए, आपका bit time. So दो bit के लिए उसके बीच में time क्या होना चाहिए, 0.83 मिलीसेकंड.
So we will wait for 0.83 millisecond. यहाँ पे हम 0.83 millisecond तक wait करेंगे. So after this, so this is 0.83 millisecond. After sending the start bit, now our actual data bit will start. So get a character into accumulator. So character हम यहाँ पे load करेंगे. Accumulator में हम हमारा character load करेंगे. And then output this bit using D0. So यहाँ पे हमने accumulator में data क्या load किया हुआ है? What is the data? If you will see it, 1001 and 0010. This is our data. So what is this in hexadecimal? ये hexadecimal में क्या है? What is the hexadecimal value? 01001001. I'm asking some question. All of you should reply. 49. Okay, so it is 49. So if it is a 49, then it is representing which character? If it is a ASCII code, then 49 in hexadecimal is the ASCII code for which character? This is in hexadecimal. So 41H is the ASCII code for A. So 49 is the ASCII code in hexadecimal for G. This is the ASCII code for G. For 41 is for A, so that is 49. This is a 49, so it is for G. So ये G का कोड होगा. So ultimately we want to send a character G. यहाँ पे हमको character G send करना है. पूरा serially send करेंगे अब ये. So one by one bit we will send it. So वो send करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा? So we will load this 49 in our accumulator. 49 accumulator में यहाँ पे हमने load किया हुआ है. So first we will send this one. So पहले यहाँ पे D0 आपका send होगा. What is a okay? Yes, it is I. Sorry. It is 49. Yes, so it is I. 49. So it is I. 49. So it is I. So it will be I. Character I यहाँ पे whatever character. Let's say that I character है वो भी हमको send करना है. So if you want to send I, then I send करना है तो पहले हम वो डेटा उसका जो भी hexadecimal कोड है वो हम यहाँ पे accumulator में लोड करेंगे. So ASCII code we have loaded inside accumulator. Now once the ASCII code is there, then we will send D0 bit. D0 bit हम यहाँ पे पहले send करेंगे. So first output using D0. D0 यहाँ पे हमने send कर दिया. So D0 क्या है यहाँ पे 1. So 1 हमने यहाँ पे ये bit है ये line अब dash line यहाँ पे observe करो. So we have make this line as a 1. Now we need to wait for 1 bit time. वापस हमको क्या करना होगा 0.83 मिलीसेकंड का डिले जनरेट करना होगा. So हम यहाँ पे डिले जनरेट करेंगे. So ये आपका डिले हो जाएगा. This is your delay. And then after generating a delay, what we need to do? Delay generate करने के बाद हमको क्या करना होगा? We need to rotate this. So अब D1 को D0 में लाएंगे. So rotate and take the next bit into D0. So जैसे ही ये आप रोटेट करोगे उसके बाद अब आपका काउंटर आपको क्या करना होगा? You need to decrement counter because one bit you have already sent. तो आपने काउंटर जो 8 से इनिशियलाइज किया था अब उसको क्या करोगे आप? So now counter will become 7. So we will check, is it the last bit? क्या ये काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है? नहीं हुई है. So no, then we will again go and again send this bit. So अब यहाँ पे क्या सेंड होगा? D0 पे जो होगा वो क्या होगा आपका? 0. So D0 हम सेंड करेंगे. So we'll send 0 and wait for 1 bit time. वापस 1 bit time तक हम वेट करेंगे. Again we will rotate. So now D2 will go inside D0. So अब आपका D2 आएगा. So according to that,
So this is how we will send the data serially. ऐसे हम डेटा सीरियली सेंड करेंगे. सो यहाँ पे आपका डेटा है वो सीरियली सेंड होगा. D1 D2 ऐसा डेटा है वो सेंड होगा. पहले क्या सेंड होगा? फर्स्ट इट विल सेंड स्टार्ट बिट, देन D0, देन D1, देन D2, then it will send D3, D4, 5, 6, 7, and then once all the data bits has been sent, what will be there? So once it is sent, it is complete. Your database is complete. We will add, if we require any parity bits, so add parity if necessary and send two stop bits. So हम दो stop bits send करेंगे. So this is for sender. And what do we need to do at receiver end? Receiver end पे हम क्या करेंगे? इससे reverse. So यहाँ पे पहले आपका data receive होगा. This is the input port. So input port पे आपका data receive होगा. So once the data will be received, then what will happen? यहाँ पे data receive होगा. So once when we will say that data will be received, so वो क्या करेगा? It will sample this input pin. ये input pin को check करता रहेगा. And it will check whether the start bit has received or not. क्या आपको start bit receive हुआ है? So read input port. यहाँ पे output नहीं आएगा, यहाँ पे input आएगा. So read input port is a start bit. Is it a start bit? क्या ये start bit है? So आपको कैसे पता चलेगा? जीरो से. So यहाँ पे जीरो होगा. Then it will wait for half bit time. अब यहाँ पे हाफ बीट टाइम के क्यों हम वेट करेंगे? हाफ बीट टाइम का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली ओवर हियर इन मिडल. सो व्हाई वी नीड टू डू दिस? हाफ बीट टाइम पे हम क्या करेंगे? वापस अगेन वी विल चेक वेदर इट इज स्टिल जीरो. सो इट मीन्स व्हाट? आपको यहाँ पे जीरो रिसीव हुआ. एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव रिसीव्ड इट जीरो. नाउ वी विल वेट फॉर half bit time and again we will check this input line and is it still zero? If it is not zero and if this become one at this moment, it means that this is not your actual start bit, it is some noise signal. And due to this noise signal, you are receiving this zero, it is not your actual start bit. ये आपका स्टार्ट बिट नहीं है, ये कोई नॉइज सिग्नल है. सो नॉइज सिग्नल है, इसकी वजह से अब वापस क्या करोगे आप? सो यू विल डिस्कार्ड इट एंड यू विल अगेन रीड द इनपुट पोर्ट. वापस आप इनपुट पोर्ट रीड करोगे एंड वी विल चेक वेदर इट इज अ स्टार्ट बिट और नॉट. आप वापस चेक करोगे क्या ये स्टार्ट बिट है या नहीं है. व्हाई वी नीड टू डू दिस? हाफ बिट टाइम पे हमको ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम इंश्योर करना चाहते हैं दैट द बिट which we have received as a start bit that we are considering as a zero. So is it due to the start bit only or it is due to the noise? अगर noise की वजह से आएगा तो वो उसका ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं होगा. If it is due to noise, then it is some small spike. So at this particular moment, it should not be zero again. वो zero नहीं होगा. So we will read at this particular moment again and ensure that अभी ये जीरो है तो इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? हाँ, पहले भी ये जीरो था, अभी भी ये जीरो है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये स्टार्ट बिट ही है. So we will sample at this particular moment and we will ensure that it is a start bit. So that is over here. This is the loop at the receiver end. Is it a start bit? We will wait for half bit time and then we will again check. Is it still low? Yes. Then we will initialize a counter. So अब हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे. सो यहाँ पे 8085 में हम एक काउंटर इनिशियलाइज करेंगे. हाउ मेनी कैरेक्टर वी विल रिसीव? कितने कैरेक्टर्स हमको रिसीव करने हैं? 8 कैरेक्टर्स. सो सेटअप बिट काउंटर एंड क्लियर रजिस्टर्स. जो ये एक्यूमुलेटर है उसको हम इनिशियली क्लियर कर देंगे. सो इनिशियली वी विल क्लियर दिस एक्यूमुलेटर. नाउ आफ्टर दिस वी विल वेट फॉर 1 बिट टाइम. आपने स्टार्ट बिट रिसीव कर दिया, अब हम 1 बिट टाइम पर वेट करेंगे. So we will wait for 1 bit time and now we will again sample it. So we will sample or we will read our port at this particular moment. ये moment पे हम वापस port को read करेंगे. So we will read the port at this particular moment and at that particular moment whatever data is there, यहाँ पे आपको क्या मिला? 1. So 1 you will get it over here. यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा. D7 में आपको 1 मिल जाएगा.
So you will get input port, save this particular bit. ये bit आपने accumulator में store किया. Now we will need to rotate it. ये bit को 1 को कहाँ पे शिफ्ट करना होगा? D6 में, क्योंकि एक एक बिट जो आएगा वो D7 से बिट आएगा और हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे और एक्यूमुलेटर को रोटेट करते जाएंगे. So ultimately your one will reach to this particular point. So that is we need to do over here. Get ready to receive the next bit. So उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा? रोटेट करना होगा. So once you will rotate it, so ये 1 कहाँ पे जाएगा? D6 में, फिर रोटेट करोगे D5 में, D4 में, D3 में, like that. And once you will rotate it, जब आप रोटेट करोगे उसके बाद हम क्या करेंगे? डिक्रीमेंट काउंटर. एंड इज इट लास्ट बिट? वो कैसे पता चलेगा आपके काउंटर की वैल्यू पे? इफ काउंटर विल रीच टू 0, देन इट मींस दैट यस दिस इज द लास्ट बिट. अदरवाइज, so once the counter will reach to 0, now we need to check the parity bits. Parity bits के लिए check करेंगे and then we will wait for 2 stops bit. So, और 2 stop bit के लिए wait करेंगे. So this is at receiver end. This is just normal flow chart. Actual programming के लिए थोड़ा बहुत इसमें modification करना पड़ेगा. I will explain that modification, which are the modifications we require. But first of all, is it clear ये sender side and receiver end पे हमको क्या लिखना होगा, कैसा लिखना होगा? What is the process? Complete process क्या है? At the sender end and at the receiver end. Sender end पे and receiver end पे. Okay, so next topic, ये जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टू इंस्ट्रक्शन, SID एंड SOD, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा. ये 2 पिन है हमारे पास और ये दोनों पिन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? दिस पिन्स वी कैन यूज बाय सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन. सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम सीरियल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन while we have discussed interrupt में हमने देखा था इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, हमने देखा था सिम का फॉर्मेट देखा था, एज वेल एज रिम का फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया था. सो डेटा आउटपुट करना है, सीरियली डेटा आउटपुट करना है. सो हमको कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करनी होगी? सिम इंस्ट्रक्शन. सो वी नीड टू एग्जीक्यूट सिम इंस्ट्रक्शन. सो सिम इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आपको पता ही है. व्हाट इज द फॉर्मेट? D0 to D5 बिट. ये जो 3 बिट है, दिस इज फॉर RST 5.5, दिस इज फॉर 6.5, दिस इज फॉर 7.5, दिस इज मास्टर इनेबल. D4 bit, that is for reset 7.5. This D5 bit we are not using it. So now remaining 6 and 7 bit we are using for serial communication. So serial communication अगर डेटा सीरियली आउट करना है आपको तो D6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? So D6 should be 1 which is enable serial output data. अगर ये बिट 0 होगा तो आपका सीरियल कम्युनिकेशन नहीं होगा, आउटपुट डेटा नहीं होगा. सो एट द ट्रांसमीटर एंड, जो ट्रांसमीटर जो आप यूज कर रहे हो वहां पे ये क्या होना चाहिए? सो फॉर दैट इट शुड बी, ये क्या होगा? ये 1 करना चाहिए आपको जहां पे आपको डेटा सेंड करना है. सो एज अ इफ यू वांट टू यूज योर प्रोसेसर एज अ ट्रांसमीटर, serially data transmitter, then we need to make this bit as a 1. एंड whatever bit is there, यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 सेंड होगा, यहाँ पे अगर 1 होगा तो 1 सेंड होगा. सो जो आपको बिट सेंड करना है वो हम कहाँ पे लोड करेंगे? सो दैट बिट विल बी लोडेड इनसाइड D7. D7 में हम वो बिट लोड करेंगे. सो दैट इज ओवर हियर. सो दिस इज वन एग्जांपल ओवर हियर. ये हम कैसे सेंड करेंगे? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटर में 80 वैल्यू हमने लोड की हुई है. सो 80 का मीनिंग क्या है? 100 1 and all 0. So this is there inside accumulator. Then rotate accumulator right. Accumulator को right rotate करते हैं. So this bit will become 1, this bit will become 0, this all other bits are 0. So in this case, now we are writing sim instruction. So अब हम sim instruction लिख रहे हैं. So this D6 should be 1. अगर आपको serially data send करना है तो D6 is 1. Then it means that which bit we have sent, हमने क्या send किया? 0 send किया या 1 send किया? What we have sent?
We have sent 0. Yes. Why? Because D7 equal to 0. D7 की current value क्या है? 0. So it means that we have sent 0 right now. So this is one example how we can send data. कैसे हम डेटा सेंड कर सकते हैं. आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं कि ये रोटेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको लिखनी होगी. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. यू कैन डायरेक्टली लोड दिस डेटा एंड सेंड. सो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख सकते हो. MVI A 04H and then sim instruction. You can directly write MVI A C0H and then sim instruction. So if you will write C0, then which bit will be sent? C0 लिखोगे तो क्या होगा? What will happen in C0? Yes, because C means 1100. So it means that ये bit आपका 1 होगा. If I will write, let's say that if I will write 90, MVI A90, and then I will write SIM directly. So it will send nothing because your this particular bit D6 is not enabled. आपने D6 enable नहीं किया. Okay, yes, very good. Okay, next, same way, receive at the receiver end. Receiver end पे हमको क्या करना होगा? So ultimately ये कैसे connected है? So this is our one of the 8085. ये जो 8085 है उसके पास हमारे पास यहाँ पे जो है वो SOD पिन है. तो यहाँ से आपका डेटा आउटपुट होगा. सो एट द ट्रांसमीटर एंड. सो अगर इसको आप एज अ रिसीवर करना चाहते हो, आपको ये 8085 में डेटा रिसीव करना है, सो आपको कौन सी लाइन सेंस करनी होगी? यू नीड टू सेंस SID पिन. सो SID पिन आपको सेंस करनी है तो आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी? इफ यू वांट टू चेक व्हाट इज देयर ऑन SID पिन, SID पिन पे क्या है, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी? यू नीड टू राइट रीम इंस्ट्रक्शन. सो जैसे ही आप रीम इंस्ट्रक्शन लिखोगे आपको एक्यूमुलेटर में डेटा मिलेगा. सो एक्यूमुलेटर में डेटा मिलेगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सो D0, D1, D2 will indicate whether the 5.5, 6.5 and 7.5 masks are available or not. Then it will indicate whether the interrupt flag is on or not. Then this 3 will indicate whether any interrupt is pending or not. And this D7 will sense this line and it will give you at this particular position. So अगर यहाँ पे आपने एज ए इनपुट आपने कुछ दिया होगा, सपोज आपने 0 स्पेसिफाई किया होगा तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा. आपने एज ए इनपुट 1 स्पेसिफाई किया होगा तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा. So that is ream is used as an input data bit. Or you can say that SIM and ream instruction are used as a 1-bit port. SIM and ream instruction को हम कैसे यूज करते हैं? 1-bit serial port communication. उसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं. Okay, so now we need to send any data. Let's say that we need to send a character serially. We need to send this character to 8085 processor using SOD line. Serially output data करना है. Then we need to write a subroutine that will transmit this data with 1000 bits per second. So आपको delay लिखना होगा. Delay routine आपको यहाँ पे लिखना होगा which will generate this delay 1000 bits per second. हमको सेंड करना है तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि 2 बिट के बीच में टाइमिंग क्या होगा. If 1000 bits per second is your baud rate, then what should be the time difference, or you can say that delay between 2 bits. दोनों बिट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? So according to that we need to write one routine. एक routine लिखना है हमको. So this is that routine. Okay, pay attention over here very carefully.
my suggestion is you will take book and pen, एक पेन ले लो and draw this table, एक table draw करो उसमें. I'm giving you 1 minute. If you are not having pen and paper, take pen and paper, draw table like this. एक ऐसा टेबल ड्रॉ करो आप. यहाँ पे रजिस्टर ए लिखो, यहाँ पे रजिस्टर बी लिखो एंड यहाँ पे रजिस्टर सी लिखो. If you need to understand this program in better way, then continue with me. ये आप पेन और पेपर लेके इंप्लीमेंट करोगे तो आपको तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो draw this table like this, or you can say that we will track this 3 register. ये रजिस्टर को हम ट्रैक करेंगे along with the carry flag के साथ. So we'll track this 3 register and carry flag. Okay, so I am going to program. ये ट्रांसमीटर का प्रोग्राम है. जो फ्लो चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही फ्लो चार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो अब हम प्रोग्राम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसमीटर का. दिस इज अ प्रोग्राम फॉर ट्रांसमीटर and software approach. Software approach means using SID pin and SOD pin we will send and receive the data. हम कोई एक्सटर्नल चिप यूज नहीं करेंगे, प्रोसेसर का ही यूज करेंगे. सो उसके लिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वहां पे. फ्लो चार्ट यहाँ पे सेम है. अब फ्लो चार्ट में हमने पहले क्या देखा था, we need to initialize a counter, so we will initialize a counter. So over here first that is a counter. So as I have told you, काउंटर में हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, will also consider start bit and stop bit. So हमारे पास 8 बिट का डेटा है, और डेटा इज ऑफ 8 बिट, then 1 stop bit and 2 start bit. So total 11. So we will initialize our counter with 11. So we will initialize counter with 11. काउंटर को 11 से हमने इनिशियलाइज किया. So जो टेबल हमने ड्रॉ किया है उसमें C की वैल्यू आप अभी लिख दो 11. Okay. Okay, then एक्सक्लूसिव और विथ ए. सो एक्यूमुलेटर का खुद के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर विल बी क्लियर. एक्यूमुलेटर क्लियर हो जाएगा एज वेल एज योर कैरी फ्लैग विल बी ऑल्सो क्लियर. आपका कैरी फ्लैग भी क्लियर हो जाएगा. सो एक्यूमुलेटर एंड कैरी फ्लैग विल बी क्लियर, दोनों क्लियर हो जाएगा. सो आप ये जो कैरी फ्लैग यहाँ पे लिखा है उसमें 0 एंड एक्यूमुलेटर में भी हम क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटर में भी हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट 0 0 0. मेंटेन इट. आप ये साथ परफॉर्म करते जाओगे तो ही आपको पता चलेगा. ओके, सो अप टू दिस वी विल से दैट ओके नाउ वी वांट टू सेंड सम डेटा. सो जो डेटा सेंड करना है, सपोज वी नीड टू सेंड 47 हमको सेंड करना है. सो 47 जो आपको डेटा सेंड करना है दैट इज देयर इन रजिस्टर बी. रजिस्टर बी में टेम्पररी हम उसको स्टोर करेंगे. जो डेटा हमको सीरियली सेंड करना है, वी नीड टू सेंड दिस बी सीरियली, this data. So what is this data? 47. So 47. So this is the ASCII code for G. ये किसका ASCII कोड है? G. So हमको G सीरियली सेंड करना होगा. प्रीवियस so यहाँ पे G सेंड करना है. So G हमारे रजिस्टर B में अभी स्टोर है, G की ASCII वैल्यू. So ASCII value of G is stored over here. Okay. Now we will start with accumulator. So यहाँ पे so first we will load accumulator with 80. So पहला हमको क्या करना है, we need to send the start bit. First we need to send a start bit. So पहले हमको करना है start bit send करना है. So accumulator को 80 से initialize किया. So accumulator में value क्या आएगी, what is there inside accumulator? So this is there inside accumulator 100000 80. ये accumulator में value होगी MVI A80. So this is there inside accumulator. Now what we will do, rotate accumulator right. So accumulator को right rotate करेंगे. So after rotating accumulator right, what will be there?
कैरी फ्लैग में क्या आएगा, व्हाट इज देयर इनसाइड कैरी फ्लैग? कैरी फ्लैग यहाँ पे प्रीवियसली जीरो था, तो जीरो यहाँ पे जो हमने सेट किया था, कैरी फ्लैग को रीसेट किया था, किसका यूज करके? एक्सक्लूसिव और का यूज करके हमने कैरी फ्लैग को रीसेट किया था, सो वो जीरो यहाँ पे आएगा। And then this one will be over here, and this data bits will be rotated one by one. ये bits यहाँ पे ऐसे rotate होते जाएंगे, and this D0 will go to your carry flag. D0 कहाँ पे आएगा? So now D0 will go into your carry flag. So यहाँ पे अभी का situation क्या है? After executing this rotate instruction, D0 is over here, and your carry flag value, which is 0, that is shifted over here, and this bit is shifted over here. Okay, so now we will write the sim instruction. So जैसे ही आप sim instruction लिखोगे तो डेटा कौन सा सेंड होगा? Which data will be sent? यहाँ पे कौन सा डेटा सेंड होगा यूजिंग दिस सिम इंस्ट्रक्शन? जीरो. सो इट मींस दैट यहाँ पे जीरो सेंड होगा. सो जीरो है क्या है वो? भी पहली बार जब आप जीरो सेंड करोगे, सो इट विल बी कंसिडर एज अ स्टार्ट बिट. सो हमने यहाँ पे स्टार्ट बिट सेंड कर दिया. सो वी हैव सेंड द स्टार्ट बिट. सो वो ऑलवेज जीरो ही जाएगा. क्यों जीरो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैरी फ्लैग को रीसेट कर रहे हैं और फिर एक्यूमुलेटर में 80 लोड करके यहाँ पे सिम इंस्ट्रक्शन लिख रहा है. सो दिस विल बी ऑलवेज जीरो. ये जीरो ही होगा. सो दिस विल इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन. यहाँ से आपका स्टार्ट बिट हमने सेंड कर दिया. सो स्टार्टिंग सेंड करने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल कॉल अ रूटीन. सो ये रूटीन है वो क्या है? सो दिस इज अ 1 बिट टाइम रूटीन. सो ये 1 बिट टाइम का रूटीन है. सो विच इज वेटिंग फॉर एज पर योर डिले कैलकुलेशन. सो डिले को कैलकुलेट आपको करना है कि दोनों बीट के बीच में डिले क्या होना चाहिए. सो इट डिफरेंट. मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिया होगा उसके हिसाब से आपको ये डिले का रूटीन लिखना होगा. अब मैं आपको वापस ये डिले का रूटीन एक्सप्लेन नहीं करूंगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट सो मेनी टाइम. सो यू नीड टू राइट द डिले रूटीन एंड देन वी नीड टू कॉल दैट डिले रूटीन. उसमें काउंट की वैल्यू क्या आएगी, काउंट की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करोगे आप, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम. सो वी विल कॉल दैट डिले रूटीन ओवर हियर. वो डिले रूटीन को यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम दिया है, नाम चेंज किया है. दैट इज अ बिट टाइम. अदरवाइज इट इज द रूटीन इज द सेम. रूटीन वही है. उसमें काउंट की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो आपको अप्रोप्रिएट डिले जनरेट करके प्रोवाइड करेगी. सो दैट यू नीड टू राइट इट over here and we need to call it over here. So after waiting this much time, 9 point, let's say that 9.1 millisecond तक wait करने के बाद हम क्या करेंगे? So now we will set the carry flag. So अब हम carry flag को set करेंगे. So STC instruction, what STC instruction will do? It will set the carry flag. So it will set the carry flag. So carry flag आपका set हो जाएगा. So now carry flag is set. आपका carry flag set हो गया. And now we will take a data. So get a character into accumulator. So अब हम पहला जो हमारा डेटा होगा जो हमने स्टोर किया था B0 में, so रजिस्टर B में, so वो अब हम accumulator में लोड करेंगे. So this data we will load now inside accumulator. So this is the actual data. This is our actual data which we will load inside accumulator. accumulator में हम ये लोड करेंगे. अभी तक का जो मैकेनिज्म था वो सिर्फ स्टार्ट बिट सेंड करने के लिए था. यहां तक हमने सिर्फ स्टार्ट बिट सेंड किया. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल कंटिन्यू. अब हमने यहाँ पे सेट कैरी फ्लैग किया. सो ये कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है. सो अभी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है एंड इनसाइड एक्यूमुलेटर वी आर हैविंग अवर डेटा 0 1 डबल ट्रिपल 0 1 1 1 व्हाटएवर इज द डेटा व्हिच इज देयर, व्हाटएवर कैरेक्टर वी वांट टू सेंड, वो अभी एक्यूमुलेटर में आएगा. एक्यूमुलेटर में उसको लोड करेंगे. नाउ वी विल अगेन रोटेट एक्यूमुलेटर राइट. सो वापस एक्यूमुलेटर को रोटेट राइट करेंगे. सो दिस वन विल गो ओवर हियर and your data which that is a D0 bit will go to carry flag. So carry flag में क्या आएगा? Carry flag will become 1 and your D7 bit will become 1
this 0 will be shifted over here, 1 is shifted over here, 0 0, ये सब कुछ ऐसे शिफ्ट होगा. So now after performing this rotate operation, this will be the situation. Register A का content ये होगा, this is there inside register A and this is there inside your carry flag. So ultimately जो बिट सेंड करना है वो अभी हम कहाँ पे रखेंगे, कैरी फ्लैग में. क्यों? क्योंकि आगे वापस यहाँ पे हम रोटेट करने वाले हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. सो आफ्टर दिस रोटेशन वी विल रिस्टोर दिस रोटेटेड डेटा इन रजिस्टर बी. तो रजिस्टर बी को भी हम अपडेट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये 1 जो हमको सेंड करना था वो हमने कैरी फ्लैग में स्टोर कर दिया. अब नेक्स्ट क्या सेंड करना होगा, ये तो ये 1 1 0 0 0 1 0 एंड 1. सो ऐसे हम ये जो डेटा है वो अब यहाँ पे रजिस्टर बी में आपका स्टोर हो जाएगा. सो रजिस्टर बी इज यूज एज अ टेम्पररी रजिस्टर. सो नेक्स्ट टाइम जब आप डेटा लोड करोगे तो ये डेटा हम लोड करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये सब कुछ हम लूप में परफॉर्म करने वाले हैं. सो विल स्टोर दिस डेटा. डिक्रीमेंट काउंटर की वैल्यू पहले हमने इनिशियलाइज की थी 11 से. सो अब हमने स्टार्ट बिट सेंड कर दिया. सो नाउ काउंटर इज बिकम 10. स्टार्ट बिट सेंड करने के बाद काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 10. एंड जंप इफ नॉट 0. अभी 10 है तो 0 नहीं है, सो हम नेक्स्ट बिट पे जंप करेंगे. सो नेक्स्ट बिट इज ओवर हियर. सो नाउ अगेन व्हाट वी विल लोड, MVI A80. सो वापस एक्यूमुलेटर में क्या लोड करेंगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. अब जब आप एक्यूमुलेटर में लोड करोगे 80, एक्यूमुलेटर में आप क्या लोड करोगे 80. सो यहाँ पे 100000 आएगा. एंड देन वी विल रोटेट राइट. अब रोटेट राइट करोगे तो कैरी फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी आपकी क्या है, सो राइट नाउ कैरी फ्लैग इज 1. सो जब आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0 0 0 0. और अब जब सिम इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो सेंड क्या होगा, 1. आर यू गेटिंग दिस? सो इट मींस दैट योर फर्स्ट बिट विल बी सेंट. आपका पहला बिट है वो सेंट होगा. ट्रैक इट पेन एंड पेपर. पेन एंड पेपर लेके आप ट्रैक करोगे तो ही ये आपको पता चलेगा. आप, मैंने आपको बोला आप वो ट्रैक करते जाओगे तो ही आपको पता चलेगा. सो अभी यहाँ पे डेटा क्या सेंड हुआ, सो डेटा विल बी सेंट 1 1 यहाँ से सेंड हो गया सिम इंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल अगेन वेट फॉर 1 बिट अमाउंट ऑफ टाइम. अगेन वी विल सेट द कैरी वापस सेट कर देंगे. सो यहाँ पे 1 आ जाएगा. वी विल लोड रजिस्टर बी टू ए. सो बी में प्रीवियसली हमने क्या स्टोर किया था, लास्ट वैल्यू बी की क्या थी, दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ बी. This is the last value of this is the last value of B. Look, false bit means always least significant bit. हम least significant bit consider करेंगे. False bit data will be considered from D0 to D7. D0 to D7 data consider होता है. So which is the least significant bit? Least significant bit आपका कौन सा होगा? So according to that, it will send it. Are you getting it? Second iteration पे क्या होगा? So now over here, this is there inside your register B. Register B का कंटेन अभी ये है 1 1 0 0 0 1 0 and 1. This is right now in register B. And now we will load it inside accumulator. So accumulator में हम ये लोड करेंगे अभी. So accumulator में डेटा आएगा 1 0 1 0 0 0 1 1 which is there in accumulator. एक्यूमुलेटर में ये डेटा आएगा. इसको रोटेट राइट करेंगे. सो इसको राइट रोटेट करेंगे. सो ये बिट होगा वो कहां पे जाएगा, सो दिस बिट विल गो टू कैरी फ्लैग. ये बिट आपका कैरी फ्लैग में जाएगा.
and this bit will go to D0. So again, we will store it into register B. So after this, what will be there in register B? इसके बाद register B में हम क्या store कर देंगे? So we will store inside register B rotated data. So that is over here. We are rotating data and we are inserting 1 1 over here. And then decrement counter, and then next bit, again you will load 80, rotate right, sim instruction. So again next bit will be send. So 1 है वो send होगा. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हम हमारा जो बिट सेंड करना है वो कहाँ पे प्रिजर्व कर रहा है? इन विच रजिस्टर वी आर प्रिजर्विंग अवर बिट विच वी नीड टू सेंड. इफ यू कैन ऑब्जर्व इट ओवर हियर, उसको हम कहाँ पे प्रिजर्व कर रहा है? कैरी फ्लैग में. यस यस यस, वेरी गुड. कैरी फ्लैग में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं. सो कैरी फ्लैग में प्रिजर्व करने के बाद वापस उसको रोटेट राइट करोगे तो वैसे आपका डेटा है वो रोटेट होगा. सो वेरी गुड. यस. सो दिस इज हाउ योर डेटा विल बी सेंट. अब जब बात आएगी काउंटर की 2, जब काउंटर 2 होगा तो आपके बी में सभी जगह पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू इनसाइड रजिस्टर बी? ऑल 1. ये ऑल 1 होगा. क्यों ऑल 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम ऑलवेज क्या करते हैं? सेट कैरी करके रोटेट करते हैं. सो यहाँ पे ऑलवेज इंसर्ट होता जाएगा. वो क्या इंसर्ट होता जाएगा? सो ऑलवेज 1 विल बी इंसर्टेड. सो जब आप इसको रोटेट करते जाओगे तब आपको लास्ट में रजिस्टर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ऑल 1. And when counter will reach to equal to 2, and when now we need to send the stop bits. So अब आपके stop bits भी क्या send होंगे? 1 1 will be last. जो 2 1 होंगे वो आपके क्या होंगे? So last 2 bit will be your stop bit 1 1. So stop bit will be sent like that. प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, प्रोग्राम एज इट इज है, बट वो स्टॉप बिट कैसे कंसीडर करेंगे? लास्ट 2 बिट्स जब 1 1 आएंगे, सो दैट विल बी कंसीडर एज अ स्टॉप बिट. एंड नाउ योर काउंटर विल बी, जब काउंटर 0 हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे एंड यू विल रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे. दिस इज अ सब रूटीन दैट विल डू दिस. Are you getting it? Okay, let me explain it one more time. It is little bit complicated, थोड़ा complicated है. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? MVI-A80. सो जब ये 80 आप करोगे, सो यहाँ पे 10000 आएगा. एंड देन वी आर, सो फर्स्ट टाइम तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी. फर्स्ट टाइम कैरी फ्लैग विल बी 0. सो एट दैट टाइम देयर विल बी, दिस इज अ 0. एंड नाउ इफ यू विल परफॉर्म रोटेट करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा. सो फर्स्ट टाइम स्टार्ट बिट विल बी सेंड. स्टार्ट बिट आपका सेंड होगा. नाउ व्हेन वी विल कम फॉर सेकंड इटरेशन के लिए आएंगे, तब क्या होगा? व्हाट विल बी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट whatever bit we need to send, जो आपका पहला बिट होगा वो कहाँ पे अवेलेबल होगा? सो दैट विल बी अवेलेबल इन योर कैरी फ्लैग. वो आपके कैरी फ्लैग में अवेलेबल होगा. सो दैट 1 विल बी अवेलेबल इन योर कैरी फ्लैग. ये 1 आपके कैरी फ्लैग में अवेलेबल होगा. सो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी तब? 1. और आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या लोड कर रहे हो? अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या लोड कर रहे हो? 80. सो एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा 80. एंड नाउ इफ यू विल रोटेट, अब इसको रोटेट करोगे तो रोटेट क्या होगा? ये बिट यहाँ पे क्या आएगा? 1. एंड ये 1 यहाँ पे आएगा. सो नाउ इफ यू विल राइट सिम इंस्ट्रक्शन, देन विच बिट विल बी सेंड? 1 विल बी सेंड. MVI-A80 क्यों कर रहे हैं हर एक बार? क्योंकि ये जो आपका मास्टर बिट है उसको 1 करना है.
इसको हर एक बार 1 करना है, इसलिए ये जरूरी है। आपका मास्टर बिट है, उसको हर एक बार यहाँ पे 1 सेट करने के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। सो इफ यू नीड टू मेक इट कंपलसरी, इसको कंपलसरी यहाँ पे 1 करना है, तो आपको ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये हर एक बार आपका 1 ही हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 0 करके आपको जो बिट सेंड करना है वो हम यहाँ पे कैरी फ्लैग में प्रिजर्व करते जाएंगे। जो हमको ये बिट सेंड करना है तो वो कैरी फ्लैग में होगा, जब ये बिट सेंड करना है तो वो भी कैरी फ्लैग में आपका प्रिजर्व होगा। सपोज ये बिट की बारी है, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग में क्या होगा, 0, एंड दिस वी विल लोड विथ 1 0 0, एंड नाउ वी विल रोटेट इट, तो ये 0 यहाँ पे आएगा एंड 1 यहाँ पे आएगा, एंड नाउ वी विल राइट द सेम इंस्ट्रक्शन, सो विच बिट विल बी सेंड, 0 विल बी सेंड। सो एवरी टाइम इट विल नॉट सेंड 0, वो हर एक बार 0 सेंड नहीं करेगा। It will send first time, definitely it will send 0 because it will be the start bit, and second onwards time it will send whatever is there in carry flag। कैरी फ्लैग में जो होगा वो सेंड होगा। तो कैरी फ्लैग में यहाँ पे ये रोटेशन की वजह से हम क्या स्टोर करेंगे, सो वी विल शिफ्ट D0 बिट इन कैरी फ्लैग। सो कैरी फ्लैग में वो बिट आपका यहाँ पे प्रिजर्व होता रहेगा। सो जब वापस यहाँ पे रोटेट करोगे तो वो कैरी फ्लैग का बिट D7 में आएगा। अब ये STC करोगे, वो कब करोगे, एक बार ये बिट सेंड हो गया, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। यहाँ पे आपने बिट सेंड कर दिया, वंस द यू हैव सेट द बिट, देन रजिस्टर बी में हमको ये अपडेट करना है, रजिस्टर बी को मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इंडिकेट करना है कि ये 1 हमने सेंड कर दिया। तो दूसरे एंड पे हम यहाँ पे 1 1 इंसर्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जब स्टॉप बिट आएगा तो स्टॉप बिट भी 1 1 करना है आपको। सो एट फॉर दैट वी नीड टू डू दिस। सेट कैरी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू विल डू सेट कैरी, सो सेट कैरी करोगे तो यहाँ पे ये 1 होगा, दिस बिट विल बिकम 1। आपका जो बिट था वो आपने सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद की बात है ये। सो सेट कैरी किया आपने, नाउ whatever data is there in register B that will be loaded। और इसको आप रोटेट करोगे, इसको आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। सो रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये ऑलवेज क्या एंटर होगा, ऑलवेज जब रोटेट करने के, आप जब भी रोटेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऑलवेज आपका बिट क्या एंटर होगा, आपने सेट कैरी किया, आपने यहां से डेटा लोड किया, सो ऑलवेज विच बिट विल बी एंटर इन योर रजिस्टर, ऑलवेज 1। यहां से ऑलवेज क्या होगा, एंटर 1 होगा। सो दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां से ऑलवेज क्या एंटर होता जाएगा, 1। तो एक बार ये आपका बिट सेंड हो गया तो अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस दिट बिट हैज बीन सेंड, तो उसको हम, ये जो 1 आपने सेंड कर दिया कैरी फ्लैग के थ्रू, फिर हम क्या करेंगे, सेट कैरी करेंगे, और सेट कैरी करके यहां से एंटर क्या करेंगे, 1। तो जब हम रोटेट करेंगे तो रोटेशन में यहाँ पे 1 होगा, दिस 1 is due to this set carry, it is not because of your D0 is 1। आपका D0 1 है, इसके लिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा। So it means that it will be like this, 1 1 0 0 0 1 1। सेम वे इसके बाद जब आप करोगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रोटेट करोगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, सो आई एम गिविंग यू रजिस्टर बी कंटेंट, रजिस्टर बी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए। सो दिस इज, सॉरी, दिस विल बी, ये जो है वो आपका पूरा डेटा है। सो इट मींस दिस विल बिकम 1, दिस बिट विल 0 1 0 0 1 1, रजिस्टर बी में ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा,
रजिस्टर बी में यहाँ पे 1 1 0 एंड देन 1 0 0 एंड 1, फिर वापस यहाँ पे सेट कैरी करके रोटेट करोगे तो वापस क्या आएगा 1 1 1 0 1 0 0 0। अब वापस यहाँ पे रोटेट करोगे तो सेट कैरी किया है, इसकी वजह से यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 0 रोटेट होके यहाँ पे नहीं आएगा। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो यहाँ पे 1 1 1 1 विल बी देयर एंड देन 0 1 0 0। सेम वे आगे भी क्या होगा, सो योर रजिस्टर बी विल बी लाइक दैट। ट्रैक दिस प्रोग्राम मैन्युअली, एक बार पूरा प्रोग्राम 8 बिट के लिए काउंटर की वैल्यू 11 से 0 करके आप ट्रैक करो तो आपको पता चलेगा, डीबग करोगे तो आपको पूरा प्रोग्राम पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। सो दिस इज फॉर सेंडर साइड, ये सेंडर साइड हमने डिस्कस किया आज। सॉफ्टवेयर अप्रोच वी हैव डिस्कस, एक बार ट्रैक करके ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा। इफ यू विल ट्रैक द होल प्रोग्राम वंस, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। If you will debug program in the method which I have explained, रजिस्टर ए बी सी एक पूरा लंबा पेज लेके बैठो तो आप ट्रैक करोगे तो काउंटर की वैल्यू 11 से 0 जब आप पहुंचोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्व द पैटर्न। ओके, डू यू हैव एनी डाउट नाउ रिलेटेड टू दिस सेंडर प्रोग्राम? सेंडर प्रोग्राम में कोई डाउट है? ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन अवर लैब सेशन। ये थियोरी पहले हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज मैं जो आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन के रिलेटेड हमारी किट के ऊपर, बट उससे पहले हमको थियोरी कंप्लीट करनी होगी। सो फर्स्ट आई विल कंप्लीट द थियोरी फॉर दिस सीरियल कम्युनिकेशन एंड देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल फॉर द सेम। हमारी जो किट है उसके ऊपर मैंने ये प्रैक्टिकल करके डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रिपेयर किया हुआ है। सो आई विल शो दैट डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हियर in lab session. Okay, so the lecture is over, you can leave the meeting now.